First of all, I would like to thank Hemal and my student friend Vinit. Actually, this project, the integrated project, is a very good idea. Usually, in India, we have a lot of workshops which are very specific to one topic. Like I'm an NDT neuro guy, so we have NDT, PNF, like that. We do separate. So I like this concept where you are doing packaging, and I think the most of the audience is freshers or those who are willing to go in neuro. So you get a complete glimpse of all the whole rehab per se. Although we say we are rehab specialists, but 90% of us are actually not working in rehab team. We are only doing physiotherapy. Thanks to God that my first job when I started, I actually worked in a rehab center called as Dinath Mangeshkar Hospital, and we had OT, PT, and speech. All three of us were working together. Like I will go there and do the chest PT, then the speech will come, then he will do his job, then the OT will come. So it's a typical integrated approach which we learned in the first phase of my job. And right now, because there is a less number of OT and speech therapists, most of you are not getting actual exposure what is the rehab concept. And every therapist, so-called physiotherapist, thinks that he is a rehab specialist. So no, rehab is a very big domain. And thanks to these guys that they are actually showing you what is rehab means. Like from neurosurgeon, physician, I think only orthopedic prosthetics did not came today. But the technical guys are here. Nowadays, the technology playing a major role. Like yesterday, Rhino, you have seen Rhino. This is again the product actually developed in my center only. In a conference in 2000, before the COVID, I met this guy. And he was having a stall in the conference, and I said, I'm a physio, but I'm giving an offer. मैं तेरे company में investor बनता हूँ, तेरा product मैं develop करता हूँ. Tell me what you need. And I actually pushed him, and his whole research is done at my center. And now this product is in market, and they are actually having a very good job everywhere. And you actually don't know value of Rhino. This is the one product which has a combination of all the joint, robotic, virtual reality, everything in one package. And if you buy internationally, it will at least cost you around 2 crores of rupees. Like the similar product which is being Australian population are using, but they don't provide everything what is there. Even the gaming concept, everything is done at my place. So whatever you are seeing, that is a very good, beautiful product, and it can be used for ortho neuro. Like anything which can be used for neuro can be used for ortho. That was my assumption was that, because neuro people are the most difficult people to treat. And now ortho guys are using very frequently, like Dhwani came yesterday. So Dhwani is an ortho specialist and she is giving the demo for that. So I'm very happy guys, you are doing not only the industry, rehab industry, but you are integrating the technical industry. And I was talking with this team also. They are showing you the so-called back-end of all the technology. Probably today you will not understand their value and importance, but when you will go on patient and you will use some electronic equipment like simple goniometry, we are still using that stupid traditional goniometry, which is inaccurate. The error is 20%, like 10 से 20 डिग्री एवरेज एरर है, फिर भी हम यूज कर रहे हैं. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा हुआ है एंकर का एमएमटी में गोनियोमेट्री करने के लिए कितना मुश्किल हो जाता था. फिर भी अभी भी वो स्टूपिड क्वेश्चन फलक्रम कहाँ पे है. To say this, but our technology which is taught in college is very rudimentary. We are 100 years back in colleges, and that is why probably our products are not so effective. Forget what is taught in college, and I am telling you practically, whatever you learn in college, 99% of that you don't practice in clinical, and 80% of what you learn in college you exactly do opposite of what you do in clinical. Like आई न्यूरो गए, हमने को सिखाया था ग्रेड 3 या 4 होने तक खड़ा नहीं कर सकते. मैं कोमोटर पेशेंट को चलाता हूँ, तो मेरे को तो फेल ही कर देते थे ये लोग कभी भी. सो एंड दिस हैपेंड विद माय स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट. लाइक आई टीच एवरीबडी टू मेक देम स्टैंड फ्रॉम डे 1. सो उन्होंने बोल दिया एग्जाम में कि खड़ा करो, और एक्चुअली उनको फेल किया, चारों को फेल किया एग्जाम में. फॉर्चुनेटली इट वाज प्रीलिम्स एग्जाम, तो ट्रायल था उनका. तो इट्स ओके. कॉलेजेस इज अ बैकग्राउंड, लाइक नॉट ओनली फिजियोथेरेपी कॉलेज. इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ब्रिटिश ने ऐसा बनाया कि सारे तुमको वो क्लर्क बनाना चाहते थे.
तुमको इंटेलिजेंट बनाना नहीं चाहते थे, याद रखो। सो इसीलिए वो प्रॉब्लम है, तुम लोगों को गलत सिखाया नहीं जा रहा, तुम्हारा दे डोंट वांट यू टू यूज योर ब्रेन, दे वांट यू टू फॉलो, इसीलिए वो ऐसा हुआ है। सो इट्स ओके, कॉलेज में जब तक है तब तक फॉलो करो, देन यू डू व्हाट इज नीडेड एंड इट इज डिमांड स्पेसिफिक, लाइक डिमांड का उसको मॉडिफाई करो एंड प्लीज लर्न टू यूज टेक्नोलॉजी। लाइक गोनीमीटर आपके मोबाइल में आजकल हर एक के मोबाइल में गोनीमीटर बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। इंफ्रारेड से मेजरमेंट कर सकते हैं आप लोग, एंगल मेजर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपने को अभी भी गोनीमीटर सिखा रहे हैं। सो इट्स ओके, लेकिन अगर तुमको फेल किया या कुछ बोला एग्जाम में तो प्लीज टेंशन मत लेना। So that was my phase, and you should just say that okay, I will pass this. And second part what they did, it's very good, is that calling people from different faculty, like this is a neuro workshop, but there are people from other specialty also they call. Appreciation of somebody's work is very very important. आप उनको पैसा दो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता है, बट अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिशिएशन, लाइक कहाँ से लोग आए बोल रहे हो, एक ट्रॉफी के लिए वो 300 रुपये में ट्रॉफी मिल जाए तो मैं वैसे ही खरीद सकता हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं, किसी ने मुझे वो ट्रॉफी देना या करना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और इन लोगों में अभी से वो अंदर आया है, अभी दे स्टार्टेड विथ मी ओनली, लाइक द फर्स्ट वर्कशॉप वाज विथ मी ओनली, एंड विद इन 1 year IHR has grown so fast. So this is a big milestone achieved within a short period of time. Like there are IIP, so many organizations already there in market, but how many of you know IIP so well? You know the name, but you are not so associated. मेरा IIP ऐसे नहीं लग रहा है अभी भी, मेरा कॉलेज है वैसा IIP लगता ही नहीं अपने को, वो प्यार खत्म हो गया। हमारे टाइम पे IIP जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में तो IHR will live that expectation that आपको ये मेरा IHR है, ये मेरा association, I worked here, I talked here, I was a part of this system. That's the level you guys can reach. Vinith has taken a very good work on Switch India, which is a big moment, and now I am expecting this will also reach beyond that. So please, आप लोगों ने जो पैसे भरे ना, तुमको पता नहीं तुमने क्या मिला है उस पैसे में, मुझे पता नहीं पैसे लिए कि नहीं। I am assuming you paid something. Like कई बार मुझे कोई स्टूडेंट आके पूछते हैं, सर ये वर्कशॉप इज इट वर्थ? मैं बोलता हूँ अरे यार अभी तू पैदा हुआ है, तुझे कुछ आता जाता नहीं और तू किसी को वर्थ पूछ रहा है। आज की डेट में भी हर साल में मैं 2-3 लाख खाली एजुकेशन में खर्च करता हूँ। मैं जब PNF को वर्कशॉप लेता था उसके पहले, बाद में मैं PNF वर्कशॉप करने गया, तो मैंने सोचा इन दिस वर्कशॉप एटलीस्ट आई विल लर्न 1%, इफ नॉट PNF आई विल लर्न हाउ टू टीच। सो हर आज भी मैं यहाँ से अभी इनसे कुछ सीख रहा था, तो आप लोगों में एटीट्यूड इतनी होनी चाहिए एजुकेशन की और लर्निंग की, जो भूख है ना वो इम्पोर्टेंट है। आजकल वो भूख कम हो गई है, सबको डिग्री चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो और जितना तुम लोग गधे बन के निकलोगे, हम लोगों का जैसा फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा। फिर तुम कॉलेज से गधे निकलोगे, फिर हमारे वर्कशॉप करने आएंगे और ये सीक्वेंस चलता रहेगा, मेरा दुकान ज़्यादा चलेगा, कॉलेज का दुकान कम हो जाएगा। तो अगर कॉलेज में सिखा रहे ना तो प्लीज अटेंड देम। वो लोग इतना दिल लगा के, लाइक जिस कॉलेज में मैं पढ़ा तो वहाँ पे भी लोग मेरा कोर्स लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे, वर्कशॉप पे आते साले पता नहीं क्या लॉजिक है। आई थिंक ओनली इज परसेप्शन, लाइक कॉलेज में आपको बिठाया गया, कॉलेज में बैठो पढ़ो, वर्कशॉप में आप वॉलंटरी पैसा दे के आते हो, आई एम विलिंग टू गेट स्क्रूड। सो ये छोटे छोटे वैल्यूएबल वर्कशॉप जो बना रहे हैं लोग, प्लीज अप्रिशिएट। तुम लोगों को पता नहीं इन लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग एक बिग प्रोजेक्ट इन मेकिंग का एक पार्ट हो आज की डेट में। और हम लोग बाद में विनीत, हेमल, ये जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जस्ट वो प्रोफेशन में ग्रो कर रहे हैं, उन लोगों का अगर इतना दिमाग चलता है जो हमारा भी नहीं चला। लाइक जब UG में मेरे साथ ये पढ़ता था संचिति में, तभी से ये कीड़े करता रहता था, कॉलेज में कम और बाहर ही ज़्यादा काम करता रहता था। उसका स्विच ऑर्गेनाइजेशन वो पहले UG में किया है, इसने ऑर्गेनाइजेशन इतना मैं उसको मारता था, मैं खुद मारा हूँ कि साले क्यों कर रहा है सब कुछ। और अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि साले ने जो किया ना वो मेरे से 10 टाइम ज़्यादा अचीवमेंट है देन व्हाट आई कुड अचीव। तो मैं क्यों बता रहा हूँ चीजें, क्योंकि विनीत थॉट एकेडमिकली गुड बॉय, लेकिन पास होता था हर बार। सो बैक बेंचर मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होते, तो
अगर तुम लोग कोई बैक बेंचर हो तो खुद को बुरा मत मानना, अगर फेल हो गए 10 बार तो भी बुरा मत मानना। सबसे ज्यादा अगर सक्सेसफुल कौन होता है, मैं तुमको मेरे रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक संजीव कुमार करके पुणे में एक बंदा है, बीपीटी उसने 7 साल में पास किया। एमपीटी मेरा सीनियर था, मेरे 4 साल बाद में उसको बैठ के पढ़ा के उसको पास करवाया। आज की जगह पे एक प्रोफेसर लेवल पे है। मैं खुद पुणे में कुछ ले नहीं पाया। उसके बड़े बड़े 2 बंगलो प्लॉट्स है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके पास। ओके, और मैं कभी कभी सोचता साला मैंने क्या किया है। अकेडमिकली आई एम सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी टॉपर होके साला मेरे को 20,000 का रेंट पे शॉप लेने की फटती थी। आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज डेलिबरेटली क्योंकि मैं वो इमोशंस तुमको बताना चाह रहा हूँ। और पैसे में रहते रहते आज की डेट में आई एम मेकिंग अ वेरी गुड बिजनेस। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अटेंडेड माय एंटरप्रेन्योरशिप लेक्चर। सो अराउंड, और मैं आज ही दवे मैडम आई थी, परसों मेरी बेबी ने कॉल किया, बोलती मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, इतना पैसा भेजो, मैंने भेज दिया। उस दिन पे मुझे रियलाइज हुआ कि साला आज मैं इस सिचुएशन में कि मुझे पैसा खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको 10 रुपए का थोड़ा का खौफ नहीं, ये सब छोटी छोटी चीज़ों से हमको तकलीफ होती है। लेकिन आज इस मुकाम पे है, कितना भी खर्चा करो, लाखों का भी प्रोडक्ट लेने में मुझे दर्द नहीं होता है और मैं सोचता नहीं हूँ। तो उस वैल्यू के लिए क्यों जरूरी पता है? ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी। लोगों ने उसको जुगाड़ बोला है, लेकिन हम उसको टेक्निकल नॉलेज, उसका नाम है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। हम इंडियन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। दवे मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमारा कॉलोनियल माइंडसेट क्या बोलता है, हम कुछ नया इनोवेशन कर नहीं सकते, जो यूएस या यूके करेगा वही अच्छा है। सो हम लोग उनसे, मैं बता रहा हूँ, मैंने यूके में भी काम देखा, यूएस का भी देखा, हमसे 10 टाइम्स गधे लोग हैं, गधे हैं। सो आप लोग पता नहीं आपको कौन हो, और जो लोग तुम्हारे हाथ दे रहे हैं, ये लोग जब तुमको बुलाते हैं वर्कशॉप के लिए, इसको क्यों मैसेज भेजना पड़े 10 बार के आओ रहे। उल्टा तुमने बोला सर कौन सा नेक्स्ट वर्कशॉप है, मैं अभी से बुक करता हूँ, मैं अभी से आता हूँ। और मैं अभी सबके सामने बोलता, अगर आपको किसी को सीखना है और आपके पास पैसे नहीं, मुझे बताओ, मैं पैसे दूंगा तुम्हारे सीखने के लिए। लेकिन तुम्हारे पास जील है ना, तो डोंट स्टॉप अटेंडिंग वर्कशॉप। हम लोगों के टाइम पे वर्कशॉप नाम की चीज नहीं होती थी। 10,000 का अक्षर फिटनेस का वर्कशॉप होता था, मेरे पास खाने के लिए वांदे होते थे, लेकिन मैं लोगों से पैसे मांग के वर्कशॉप करने पर हमारे 4 वीकेंड होते, 1 वीकेंड नहीं। अभी तो 2 दिन का वर्कशॉप वो बड़ा होता है। हम पुणे मुंबई 4 वीकेंड के लिए आते थे, और ये बंदा तुमको इतने सारे वर्कशॉप दे रहा है, या मार्केट में जो भी कोई वर्कशॉप दे रहा है, प्लीज अटेंड। और कॉलेजेस में, कुछ कॉलेज में सिखाया जा रहा है, कुछ में नहीं जा रहा है, और कॉलेज वाले तुमको अलाउ नहीं करेंगे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, इसीलिए हम लोग सैटरडे संडे करते हैं। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू विनीत।